کے خط کے بعد رومیو کی کتاب کا مطالعہ ہم لوگ کر رہے ہیں اور مجھے بہت دلچسپ لگ رہا ہے یہ سب کچھ سیکھنا، اور مجھے لگتا ہے آپ سب کو بھی دلچسپ لگ رہا ہے۔ کتنے لوگوں کو اس کتاب کی اسٹڈی دلچسپ لگ رہی ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ رومیو کے خط کو یا رومیو کی کتاب کو کنسٹیٹیوشن آف کرسچینٹی کہا جاتا ہے، مسیحیت کا آئین کہا جاتا ہے اس کتاب کو۔ یعنی اگر آپ کو مسیحیت کے آئین جاننے ہیں، مسیحیت کی بنیادی اصول جاننے ہیں، تو اس کتاب کا مطالعہ کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ہم اس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اور آج کے جو عنوان ہے، میرے دل میں بہت سے عنوانات آ رہے تھے۔ ایک تو میرے دل میں آ رہا تھا کیونکہ جب ہم ڈسکشن کریں گے تو آپ ایگری کریں گے، میں سوچ رہی تھی اس کلام کا عنوان رکھوں کیس نمبر 777، پر مجھے لگا شاید وہ اتنا سوٹیبل اور تھیولوجیکل اتنا اسٹرانگ نہ ہو، اس لیے ہمارے آج کے کلام کا عنوان ہے گنہگار اور خدا کی راست بازی۔ یہ دونوں چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور جو رومیو کے خط میں ہم پڑھ رہے ہیں، مقدس رسول میں نے کہا پہلے 3 ابواب میں صرف گناہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ رسول اتنی ڈیٹیل میں گناہ کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، ہم تب تک اپنی بیماری کا علاج اچھے سے نہیں کروا سکتے جب تک ہمیں اپنی بیماری کی تشخیص نہ ہو جائے، جب تک ہماری بیماری ڈائگنوز نہ ہو جائے، ہمیں پتہ نہ چل جائے۔ آپ بہت سے ایسے عزیزوں کو جانتے ہوں گے جو اس لیے مر گئے کیونکہ ان کی بیماری پتہ نہیں چل سکی، ان کی بیماری کا ڈاکٹرز کو پتہ نہیں چلا، اور سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو گئی اور پتہ نہیں چلا انہیں کیا ہوا تھا۔ اور بعض وقت آپ ایسے عزیزوں کو بھی جانتے ہوں گے جن کی اس لیے موت ہوئی کیونکہ ان کی بیماری کا بہت دیر بعد پتہ چلا۔ جب پتہ چلا کہ انہیں یہ بیماری ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیماری کا بہتر علاج اور اچھا علاج تب ہی ممکن ہے جب بیماری کی ٹھیک وقت پر ٹھیک تشخیص ہو جائے۔ رسول بنی نوع انسان کی سب سے بڑی پرابلم کو اس لیے 3 ابواب میں ڈیٹیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بنی نوع انسان جان سکے کہ پوری انسانیت کا سب سے بڑا پرابلم گناہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور رسول اسی لیے پہلے باب میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بے دینوں کی بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کبھی خدا کا کلام نہیں سنا، جن تک مسیح کی انجیل نہیں پہنچی، اور رسول بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بے دینی میں خدا کے حضور گناہ کیا۔ پھر دوسرے باب میں رسول ریاکاروں کی، عبرانیوں کی، یہودیوں کی جن کو شریعت ملی، جن کو خدا کا کلام ملا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی گنہگار ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اور تیسرے باب میں رسول اس کنکلوژن پر، اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رسول اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب کے سب کیا ہیں؟ گنہگار ہیں۔ اور میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کہی تھی، جب ہم یہ کلام سنیں گے اسپیشلی یہ پہلے 3 ابواب میں، تو ہمیں ایسے لگے گا جیسے ہم کسی عظیم تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہیں۔ خدا کا تخت عدالت ہے اور ہم سب کٹہرے میں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں رسول کے بہاف پر بول ضرور رہی ہوں، لیکن ہم سب انسان ہوتے ہوئے ہم اس کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور خدا جج ہے، خدا منصف ہے، اور رسول پرسیکیوٹر کے طور پر، ایک وکیل، ایک سرکاری وکیل کے طور پر مدعا ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سب انسان کیا ہے؟ گنہگار ہیں۔ اور رسول نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا، اور میں نے کہا تیسرے باب میں رسول اس نتیجے پر پہنچے اور انہوں نے انڈکٹمنٹ بنائی، جسے اردو میں فرد جرم کہا جاتا ہے۔ اجاز بھائی کو زیادہ ہیلپ ہوگی سیکھنے میں۔ رسول ایک سرکاری وکیل ہوتے ہوئے بنی ہوئے انسان پر فرد جرم لکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ کہ سب کے سب گناہ کے متحد ہیں۔ سب کے سب گناہ کے کیا ہیں؟ متحد ہیں۔ اگر ہم تیسرے بات کی 9ویں آیت سے پڑھیں تو رسول لکھتے ہیں، پس کیا ہوا؟ کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ رسول اپنی بات کر رہے ہیں کیونکہ رسول یہودی تھے، فریسی تھے، عالم تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ رسول کہتے ہیں ہم نے پہلے اور دوسرے باب میں یہ بات کہہ دی ہے کہ اگر کوئی بے دین ہے وہ بھی گنہگار ہے، اور اگر کوئی شریعت رکھنے والا ہے تو وہ بھی خدا کے حضور
गुनहगार ही है। वो कहते हैं हमने पहले से इल्जाम लगा दिया। ये लीगल टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इल्जाम लगाने से इंग्लिश में लफ्ज प्रूफ इस्तेमाल हुआ है कि साबित हो चुके हैं कि वो सब क्या है, गुनहगार है। सो पौलुस कहते हैं सबके सब गुनाह के मातहत है। और गुनाह के मातहत से मुराद ये नहीं कि वो गुनाह करते हैं, बल्कि गुनाह के मातहत से मुराद ये बात है कि वो गुनाह के गुलाम है। गुनाह के क्या है, गुलाम। गुलाम से मुराद वो गुनाह की खिदमत करते हैं, गुनाह उन्हें कंट्रोल करता है, गुनाह उन्हें आगे पीछे से अंदर बाहर से घेरे हुए है, इसलिए गुनाह के मातहत है और वो गुनाह की खिदमत करते हैं, वो गुनाह के गुलाम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गुनहगार ये सोचता है कि अगर मैं मसीह यीशु को कबूल करता हूँ मैं कैद में आ जाऊंगा, मैं बाउंड हो जाऊंगा। लेकिन मेरे जीजो कलाम मुकद्दस ये फरमाता है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का क्या है, गुलाम है, वो गुनाह की गुलामी में है। और गुनहगार ये सोचता है नहीं, अगर मैं गुनाह में हूँ तो मैं आजाद हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जब दिल करता है, जो दिल करता है मैं करता हूँ, इसलिए मैं आजाद हूँ। लेकिन मेरे जीजो हाँ, वो जो चाहता है वो करने के लिए तो आजाद है, मगर वो करने के लिए आजाद नहीं है जो उसे करना चाहिए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो सब कुछ करने के लिए आजाद है जो उसका दिल चाहता है, लेकिन वो गुनहगार शख्स आजाद नहीं है वो कुछ करने के लिए जो उसे करना चाहिए, जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए बेहतर है। इसलिए गुनहगार ये सोचता है कि अगर मैं गुनाह में हूँ तो मैं आजाद हूँ, और वो ये बात नहीं जानता कि अगर वो गुनाह की हालत में है, अगर वो गुनाह भरी जिंदगी गुजार रहा है तो वो गुनाह का क्या है, गुलाम है। गुनाह ने उसके दिल पर कंट्रोल कर रखा है, वो इंसान गुनाह के मतहत है। यीशु मसीह मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील में यीशु मसीह फरमाते हैं 15वें बाब की 19वीं आयत में, क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती हैं। दिल से क्यों निकलती हैं ये सारी बुराइयां? क्योंकि दिल पर किसका कब्जा है, गुनाह का कब्जा है। गुनाह ने उन्हें कंट्रोल किया हुआ है। और आज गुनहगार क्यों नहीं समझ पाते कि वो गुनहगार है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम लोग अपने गुनाहों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, हम अपने गुनाहों का मुआवजा दूसरों के साथ करते हैं। हम सोचते हैं मैं फलानी बहन से बहुत अच्छी हूँ, हम सोचते हैं मैं उस भाई से अच्छा हूँ, उसके अंदर तो इतनी बुराइयां हैं, मेरे अंदर तो सिर्फ इतनी सी बुराइयां हैं। तो मेरे अजीजों मैं आपको बात बता दूं, आपको रास्तबाजी के काम करने के लिए या रास्तबाज बनने के लिए या खुदा के हुजूर मकबूल ठहरने के लिए आपको दूसरे इंसानों की नहीं, बल्कि आपके पास एक ही मयार है और वो रास्तबाजी का मयार आपके खुदावंद यीशु मसीह का है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस फरमाती है, रसूल फरमाते हैं बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा हमें कहीं भी, अगर कहीं भी आपको बाइबल में नहीं मिलेगा कि आप इसके जैसा बने, इस नबी के जैसा बने। हमें कलाम मुकद्दस फरमाता है खुदा की मानित बनो जैसे तुम्हारा बाप कामिल है, तुम भी वैसे ही बनो। और अगर रसूल ने, पौलुस रसूल ने कहीं कहा भी कि मेरे जैसे बनो, तो उन्होंने अगली ही स्टेटमेंट में कहा जैसे मैं मसीह की मानित बनता हूँ। सो हमारी नजर में मेंटर कोई इंसान, कोई पादरी, कोई खादम, कोई बिशप नहीं है। हमने अगर किसी की पैरवी करनी है तो वो सिर्फ मसीह यीशु है। आमीन। सो गुनहगार सोचते हैं कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, इसीलिए उसे अपने गुनाह का एहसास नहीं होता। लेकिन रसूल फरमाता है कि गुनाह ने उसको आगे पीछे से घेर रखा। अगर बेदीन गुनहगार है तो शरीयत पर अमल करने वाले भी गुनहगार साबित होते हैं। सो दोनों खुदा के तख्ते अदालत के सामने खताकार हैं, गुनहगार हैं। सो फर्द जुर्म क्या था? सब के सब गुनाह के मतहत है। एवरीबॉडी इज अ सिनर, एवरीवन इज अ सिनर, हर कोई गुनहगार है। फिर सवाल ये पैदा होता है, अगर अदालत में केस आ ही गया है तो अगर वकील बात करता है तो फिर वकील से सबूत मांगे जाते हैं, और फिर रसूल सबूत भी देता है कि अगर सब इंसान गुनहगार हैं तो फिर अगर फर्द जुर्म है तो उस जुर्म को साबित करने के लिए सबूत भी मुहैया किए गए हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए 30 बाब की 10वीं आयत से। हालेलुया, प्रेज। रसूल लिखते हैं, चुनाचे लिखा है कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। अब रसूल देखे बता रहे हैं लिखा है, लिखे से मुराद सहीफों से बातें नहीं गई हैं। और मैं जब ये सारे सबूत पढ़ रही थी, सारे शवाहिद पढ़े जा रहे थे, तो मुझे याद आया कि ये सारे जो ये पॉइंट्स जो लिए गए हैं रसूल ने, ये सारे पॉइंट्स मज़ामीन में से लिए हैं। क्योंकि आज खुदावंद के खादिम फरहान साहब
आ रहे हैं। हफ्ते के दिन सबक की इबादत के बाद हम लोग मज़ामीन की बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और मुझे लगता है मैंने कोई 50 दफा 150 ज़बूर पढ़ लिया है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस होते हैं, हम स्टडी करते हैं। तो मैं जब ये पॉइंट्स पढ़ रही थी तो मैंने देखा पुराने अहदनामे के मज़ामीन में से लिया गया। तो पहला नुक्ता ज़बूर 14 से रसूल फरमाते हैं कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। और फिर रसूल 11वें आयत में कहते हैं कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। आप देखें, सबसे पहला सबूत कि बनी हुआ इंसान गुनहगार है, फितरती तौर पर, पैदाइशी तौर पर, तबई तौर पर उसकी जो फितरत है वो क्या है, गुनहगार है। तो रसूल पहला सबूत देते हैं उसकी नाकारा हिकमत, उसकी नाकस हिकमत, उसकी गुनाह आलूदा हिकमत, क्योंकि रसूल कहता है कोई समझदार नहीं, कोई समझता ही नहीं। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत उसके दूसरे बाब की 4वीं आयत में रसूल फरमाते हैं मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। नफसानी आदमी गुनहगार, आम इंसान, जिस्मानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है। वो उन्हें समझ नहीं सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि उसके पास वो समझ नहीं है। उसकी जो गुनाह आलूदा हिकमत है वो खुदा की बातें समझने से नाकारा है, वो नाकाम है, वो नाकिस है, वो खुदा की बातों को समझ नहीं सकती। इसीलिए आज क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिग्री पीएचडी है। आप किसी पीएचडी पढ़े हुए शख्स को मसीह की मोहब्बत, मसीह की कुर्बानी के बारे में समझाएं, वो नहीं समझ पाएगा। आज दुनिया ने इतनी साइंस से जो है वो तरक्की की है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपको घर में बैठे हर एक सहूलियत मुयसर है। आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं और आपकी गाड़ी फौरन से बोल उठती है कि आपने दरवाजा सही तरह से बंद नहीं किया, और शायद वो इंसान चौंक उठे कि क्या मेरी गाड़ी मेरे साथ बोली। तो ये सच है। गाड़ी बताती है कि आप ड्राइव सही नहीं कर रहे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, बल्कि साइंसदानों ने एक रोबोट बनाया है सोफिया के नाम से। वो रोबोट हर एक मेमोरी रखता है, इंसान से कहीं ज्यादा मेमोरी। उसे जो भी सवाल पूछा जाए वो चंद सेकंड्स में गूगल पर रिसर्च करती है और वो रोबोट जवाब